Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss about the ninth unit of grade plus 2, that is biotechnology. In this we will study about the introduction, about some discoveries, definition of biotechnology, its principles and some concepts. So let us start with introduction of this chapter. So, biotechnology is the technique that utilizes biological systems, living organisms or parts of this to develop or create different products for mankind. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना या उनके किसी पार्ट का यूज़ करना ताकि उसको डेवलप कर सकें, मॉडिफाई कर सकें या फिर उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम क्रिएट कर सकें एंड फर्दर इट कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स. सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कि बायोलॉजिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ मिक्सअप होता है, टूल्स यूज़ होते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसकी हेल्प से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके क्रिएट किए जा सकें. And according to European Federation of Biotechnology, it is the integrated use of biochemistry, microbiology and engineering sciences in order to achieve technological application of the capabilities of microorganisms, culture tissues or cells and parts thereof. मतलब क्या हुआ बच्चे इसका कि इट इज़ द मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का एंड इंजीनियरिंग का, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सो दैट वी कैन मैन्युपुलेट द कैपेबिलिटीज. हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैपेबिलिटीज़ को चेंज कर सके, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू या सेल को कल्चर कर सकें, कल्चर करके उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकें या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को मॉडिफाई करके हम लोग उसको ह्यूमन बीइंग्स के यूज में ला सके. सो दिस इज द डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज कैरली अर्की और कार्ल एर्की. So basically he is regarded as the father of biotechnology by many scientists because he has termed the coined biotechnology. Remember, he has termed the coin biotechnology. Now we will talk about some discoveries or inventions in this field. First हमने genetic engineering की बात करी. So father of genetic engineering is Paul Birch. इन्होंने ही जो है genetic engineering जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करी थी by combining or assembling the first DNA molecule that combined genes from different organisms. He was an American biochemist. And he also got Nobel Prize in 1980 in chemistry with Walter Gilbert and Frederick Sanger. After that, Arbor, Nathan and Hamilton Smith isolated the first restriction endonuclease. Restriction endonuclease are the molecular seizures. Means ये एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने में. So this enzyme is required for cutting DNA from a specific site and it was first isolated by Arbor, Nathan and Hamilton Smith. Next, Annie Chang and Stanley Cohen in 1973 generated the first recombinant DNA. इन्होंने सबसे पहला जो है recombinant DNA वो जनरेट किया था in 1973. Now, if we talk about recent inventions in biotechnology, there is biosensors. Biosensors basically क्या होते हैं? These are devices which analyze your biological system. ठीक है? And they include a combination of biological detecting elements like sensor system and transducer. So biosensors जो हैं वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी सेंस कर सकते हैं, शुगर लेवल को सेंस कर सकते हैं. So it is a new and recent invention in the field of biotechnology. Next is bioprinting.
It is the process where biomaterials such as hydrogels or other polymer are combined with cells and growth factors then printed to create tissue-like structure. ठीक है, तो बायो प्रिंटिंग में क्या होता है, कुछ एक बायो मटेरियल जैसे कि हाइड्रोजेल्स हो गए या फिर कोई अदर पॉलीमर हो गए, उसको कंबाइन किया जाता है सेल्स के साथ या फिर कुछ एक ग्रोथ फैक्टर्स के साथ और एक प्रिंट दे दिया जाता है ताकि नया टिश्यू जो है वो क्रिएट हो सके. And the last one is gene editing. Gene editing was done by first CRISPR Therapeutics, ठीक है, जिन्होंने कि मिलियंस ऑफ पीपल को ट्रीट किया था. जीन एडिटिंग में क्या होता है, डिफेक्टिव जीन को एडिट करके मीन्स उसको चेंज करके उसको एक नए जीन में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि उसकी वजह से कोई डिफेक्ट अगर किसी पर्सन में हुआ है तो उसको भी चेंज किया जा सके. जीन की वजह से जेनेटिक डिफेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, जीन एडिटिंग की हेल्प से जेनेटिक डिफेक्ट्स को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. नाउ coming up to the principles of biotechnology, there are two core principles of biotechnology. First is genetic engineering, where there is manipulation of genes by humans. ठीक है, humans manipulate करते हैं genes को, and manipulation कैसे होती है, by artificially synthesizing, isolation, modifying, combining, adding and repairing the genetic material to alter the phenotype of the host organism to suit human needs. मतलब कि आर्टिफिशियली किसी भी जीन को सिंथेसाइज करना, उसको या आइसोलेट करना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, फिर उसको मॉडिफाई करना, किसी और जीन के साथ कंबाइन करना, ऐड करना, या किसी भी डिफेक्टेड जीन को रिपेयर करना ताकि उसकी वजह से जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर है ना, बाहर का जो कैरेक्टर होता है उसको ऑल्टर किया जा सके ताकि वो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से सूट हो सके. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने अभी बात करी जेनेटिक डिफेक्ट की, तो जेनेटिक डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जीन्स में प्रॉब्लम आ जाती है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन जीन को आइसोलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे अच्छे वाले जीन, गुड जीन्स या फिर हमारे यूजेबल जीन्स के साथ कंबाइन करके, ठीक है, उस पर्सन का जिसमें वो जेनेटिक इफेक्ट या फिर डिफेक्ट की वजह से कोई चेंज आया है उसके फिनोटाइप में, उसको हम लोग फिर ऑल्टर कर सकते हैं. सो दिस इज जेनेटिक engineering. Now the next one is maintenance of sterile condition. Sterile condition means वो condition जहाँ पे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आ सकते, मीन्स बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन जहाँ पे कि आपको सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो कि आपको चाहिए, विच आर ऑफ योर यूज. सो दैट इज स्टराइल कंडीशन. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए स्टराइल कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो वो आपके रिजल्ट को या साइंटिस्ट के रिजल्ट को बहुत हद तक ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो इसमें होता क्या है, इट इज द कंडीशन दैट इज फ्री ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड बायोटेक्नोलॉजी में अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ठीक है. एंड it is required where there is growth of only desired microbe for the manufacture and manipulation of biotechnological products. जैसे कि आपके अगर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ यू वांट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको कोई दवाई बनानी है, कोई मेडिसिन बनानी है, एंटीबायोटिक बनानी है, कोई एंजाइम बनाना है, वहाँ पे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है. सो स्टराइल कंडीशन होनी चाहिए. दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल फॉर बायोटेक्नोलॉजी और फॉर वी कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग. नाउ वी विल सी सम ऑफ द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो देखो, वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है.
सबसे पहले है आपकी asexual reproduction and then we have sexual reproduction. Asexual reproduction is where there is genetic characters are preserved, means जो genes है, अब if an organism is reproducing by fission, by budding, तो there is no combination of other gamete, कोई दूसरा गैमेट आके नहीं फ्यूज हुआ है, कंबाइन नहीं किया है दूसरे गैमेट के साथ, तो जीन्स में कोई चेंज नहीं आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रिजर्व रहते हैं. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उधर वेरिएशन आ जाती है. समटाइम्स दिस वेरिएशन इज बेनिफिशियल, तो इसी बेनिफिशियल वेरिएशन की बेसिस पे मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है वो आपकी की जाती है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेनिफिशियल एक्टिविटी plant and animal breeding programs takes place where hybridization is done for combination and multiplication of desired gene or genes. ठीक है, मतलब कि मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में इसी सेक्सुअल, ये जो आपकी वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वेरिएशन आई है उसके बेसिस पे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को किया जाता है, जहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है. दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हम लोग रिप्रोडक्शन करवाते हैं ताकि उन दो डिफरेंट ब्रीड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में हमको मिल सके. एंड वो कैरेक्टर्स या फिर वो जो होते हैं वो सिर्फ डिजायर्ड जीन्स ही आते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, अनडिजायर्ड जीन्स नहीं आते. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात करें जो पुराने ज़माने में की जाती थी, उसमें अनडिजायरेबल जीन्स के साथ अनडिजायरेबल जीन्स भी जो है वो डिजायर्ड वंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाते थे, मीन्स डिजायर्ड वन के साथ वो शो हो जाया करते थे कभी कभी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक of modern and traditional system. So genetic engineering में basically ओवरकम करने के लिए इस लिमिटेशन को, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है, फिर उसके बाद जीन क्लोनिंग का यूज होता है एंड जीन ट्रांसफर का यूज होता है. तो ये तीन जो टेक्निक्स हैं ताकि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में जो फॉल्ट्स थे, अनडिजायरेबल जीन्स आ जाते थे, उसको ओवरकम करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर इज यूज्ड, which allows to isolate and introduce only desirable genes without undesirable genes. So bacha, this was all for this video. In the next video we will further take this chapter and we will cover up it. Thank you.